things in this world. That time work, that time they will not work. You can see here also. Anyways, but as I was telling, how we see the pattern form in this world when things are so nicely arranged, so nicely managed. Parallelly, also we see there are so many compassionate nature also. So there are 6 type of juices, 6 type of juices. Don't tell me pineapple juice, mango juice, ऐसा नहीं है ना. Something मतलब 6 taste, there are 6 type of taste basically, simple language. Taste. क्या क्या टेस्ट होते हैं बोलो. आप सब लोग खाते हैं, मुझे बोलना मत कि मैंने कोई खाया नहीं सब चीज. There's something called a sweet, sour, then pungent, salty, bitter, spicy. These 6 tastes are there. And if you see, ये सब क्यों बनाए गए हैं? Why do you have taste on by the way? आपको पता है जैसे गाय को नो टेस्ट, को टेस्टिंग नहीं हो देता, नो टंग के ऊपर ऐसा हम खाते ना, अरे स्वीट है ये तो एकदम ऐसा है. मेनी एनिमल्स डोंट हैव टेस्ट, दे कांट अंडरस्टैंड टेस्ट. वो लोग बस ले लेते. तो देखा फिर गाय के पेट से प्लास्टिक निकलते ना, क्यों निकलते? बिकॉज नो डिस्टिंक्शन, समझ फर्क नहीं कर सकते. बट वी आर ऑफर्ड स्पेशल टेस्ट सो दैट वी कैन एस्थेटिक होता है, एस्थेटिक सेंस. इमेजिन करो कि दीवार अगर काला होता था, 3 दीवार सफेद, 1 दीवार काला, तो दैट पर्सन डजंट हैव एन एस्थेटिक सेंस ऑल टुगेदर. वहां पे वो अरेंजमेंट करके रखा है पीछे आपके ऑर्डर का, कितना अच्छे से अरेंज किया सब चीज. तो दैट रिक्वायर्स सम सेंस, रैंडमनेस नहीं उसमें कुछ. करेक्ट. इसलिए वी सी व्हेन गॉड, व्हेन वी टॉक अबाउट गॉड, ही इज हैविंग अ शार्प इंटेलिजेंट, एंड अलोंग विद दैट ही हैज दैट sentiments. You see Bhagavad Gita also, when Krishna is speaking Bhagavad Gita, at times Arjuna is addressing Krishna as Param Brahma, Param Dhama. Oh, you are covering the entire universe, Param Brahma. But at the same time, Arjuna is having a personal dialogue with Krishna also. So both sides are there in God. So let's go ahead in today's session. As we enter this session, discover the happy planet. As I was telling you, I gave the example of a tree in the beginning, telling you how there are people. Similarly, Lord is also a person. And because he's a person, he has a planet, a place where everyone along with him, along with his devotees, they are there. And what is there? What happens there? Every moment is a फेस्टिवल. एक गाना बड़ा फेमस हुआ था, मतलब ये बहुत पुराना है, आपको पता भी नहीं होगा. हाँ, चल के तुझे मैं दिखला हूं, सुना था गाना? सुना है गाना? देख लेना जाके घर पे गाना. But if you see the words in this song, why generally we don't quote a song, but why I'm quoting this song is here the person is saying, आज चल के तुझे मैं दिखला दूं, let us go to a place. ये दुनिया का परे ऐसे एक जगह है जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, प्यार ही प्यार खिले. There is no sadness there, there is no misery there, all happiness there, and everyone is ecstatic there. That place is that place. That song is talking about this planet. Let us see what planet that is today, where every moment can be a festival. See, देखो अभी हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते करते, तो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया हम लोगों ने अभी रिसेंटली? दिवाली किया. करेक्ट. तो दिवाली में फेस्टिवल क्या होता है? ठीक है, एक दिन फेस्टिवल हो गया, अच्छे कपड़े पहन लिए, थोड़ा फैंसी खा लिया, उसके रोज करने की इच्छा होती, कल भी चलो फेस्टिवल करते हैं, परसों भी करते हैं. तो क्या हो गया, दुनिया में जब हम रहते हैं वहां पे हमको काफी चीजें खुद से करनी पड़ती है. तो जो आपने जोरदार फेस्टिवल किया, देखो आपके लिए इतना प्रसाद आ गया है ना, ऐसा प्रसाद आया आप लोग के लिए, सुबह ये रोज आता था. तो क्या होता था, प्रसाद तो हो रहा है अच्छा, तो उसको धोना भी तो है, ट्रांसपोर्ट भी तो करना है, वहां से यहाँ लाना है, ये सब झमेला इस दुनिया में हम देखा है. पर स्पिरिचुअल ऐसा नहीं है.
एक्चुअली हमको लगता है कि हमको जब when we live in this world we have to deal with so much of झमेला. हमको क्या लगता है और इधर झमेला उधर भी झमेला होगा, है ना? That's why today we see a place where every moment is a festival. And let us see what we're going to discuss today in this session. So we'll be discussing on 3 points here. Miserable material world. When you see miserable material world, हमको लगता है कि इसके सब जगह मिजरेबल ही होगा. यहाँ पे मिजरेबल है मतलब कहाँ पे? सब जगह मिजरेबल है ना? We feel that okay मेरा यहाँ पे ब्रेकअप हो रहा है, तो सब जगह पे ब्रेकअप ही हो रहा है, सब जगह ब्रेकअप होता है, हमको ऐसा फील आता है. So but इसका अपोजिट में there is something called as blissful spiritual world. वो क्या है, वो क्या जगह है, कैसे मैं जा सकता हूँ, and what I should do to go there. बराबर ना? आप बोलेंगे प्रभु जी आपने तो बोल दिया कि जगह के बारे में बोला, जाना कैसे बोला ही नहीं. काफी लोग you see in this world nowadays people do like this, they talk about so many things, और वहाँ पे कैसे अचीव करना है no one talks about that. We should have a very good thoughts, but how to achieve those thoughts? No procedure for that. Understand what I'm trying to say? People talk about having good thoughts or happy thoughts or whatever thoughts, but how to achieve those thoughts? We don't have a solution for them. So here we will be offering you a simple formula. It's very simple: A, B, C, D, E. First, you remember these 5 alphabets, you can pave your pathway. That please. Now, you may say, "Arey, this world is miserable place." पहला जो point है आपका miserable material world. आप बोलेंगे यार रोजी आप तो मुझे लग रहा है कि थोड़े से जरा नेगेटिव माइंडेड है आप, है ना? तो नेगेटिव माइंडेड है क्या? ये सच में नेगेटिव माइंडेड है? माइंडनेस है क्या? इज इट नेगेटिव माइंडेडनेस टू टॉक अबाउट मिजरी ऑफ दिस वर्ल्ड? Generally in this world what happens, a flower blooms in the morning and evening what happens, it wilts. हमारा अनुभव क्या दुनिया का? दुनिया में कुछ भी चीज आता है, बढ़ता है और फिर नीचे गिर जाता है ना? लोग टीनेज में सुंदर होते हैं, 30s तक सुंदर होते हैं, एंड लेटर दे बिकम ओल्ड. इनको देख भी नहीं सकते आप. पहले लोग उसके तरफ भागते हैं, बाद में उससे भागते हैं. This is the world. Why that's why we experience so much misery in this world. Everything fades away over a period of time in this world. जैसे कृष्ण से गीता, भूमिरापो नलो वायु कम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्न प्रकृति अश्वदा. Krishna is saying in Gita that just like a tree branch, tree is there, there's a branch is there in a tree. As soon as the branch is cut, what happens? Once one of our friends, they went for a walk. और एक जगह पे ग्रास था, ग्रास समझते, ग्रास गवत, मराठी गवत पड़ता था. तो उसने देखा क्या, यहाँ पे एक जगह पे जो घास था हरा था, एक जगह पे घास पीला था. तो उसने पूछा ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको? एक जगह पे घास पीला था, एक जगह पे घास हरा था. Why? हाँ, ड्राई क्यों हो गया? वो क्यों नहीं मिली? May not be always. Basically क्या है, जो ग्रास जमीन से कनेक्टेड है वो हरा था. जो ग्रास डिस्कनेक्ट हो जाता है कुछ समय के बाद, है ना, उसका रूट्स हो लेना बंद कर देते हैं, वो ग्रास पीला हो जाता है. तो जस्ट लाइक जैसे ब्रांच का जो ट्री है जैसे डिस्कनेक्ट हो गया, जैसे डिस्कनेक्ट होता है किससे? ट्री से, तुरंत उस समय सूख जाता है एक दिन. वैसे ही जो लिविंग एंटिटीज है, लिविंग एंटिटीज लाइक whenever living entity gets disconnected from God, वो उसका क्या होता है? फिर सूखना चला जाता है. आप समझ रहे हैं एग्जांपल क्या दे रहा हूँ? Does it make sense? जो बोल रहा हूँ उसका एवरीवन, मतलब जब झाड़ से जो ब्रांच कनेक्टेड है
that time the branch remains fresh. As soon as it gets disconnected from the tree, it becomes wilted या फिर सूख जाता है. वैसे ही whenever living entities they get disconnected from God in their lives, they enter the miserable material world which is like a dry. As soon as we get connected with God in our life also becomes ever fresh. That's the meaning here. That's why we quoted a shloka. Okay, let's go ahead. आपने सुना तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जो कहावत है सुना है? तमसो माँ ज्योतिर्गमय. तमस मतलब क्या आपको पता है? ये when how many of you traveled in a cab, booked a cab, ओला कैब्स, उबर कैब्स बुक किया कभी? उसमें क्या होता है? क्या क्या भरना क्या पड़ता है? डाटा क्या? व्हाट डाटा दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? लोकेशन. कौन सा लोकेशन? हाँ, पिकअप लोकेशन एंड ड्रॉप लोकेशन. वैसे ही तमसो माँ ज्योतिर्गमय, पिकअप लोकेशन क्या है? तमस, a world full of a world having no knowledge or ignorance. That is pickup point. तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ड्रॉप पॉइंट क्या है? A place where jyoti or knowledge is there. From darkness to light, from ignorance to knowledge, from a place where death is there. मृत्योर्मा अमृतगमय, place where death is there is a place where deathlessness is there. यहाँ पे एक जगह पे मृत्यु है और एक जगह पे क्या है? अमृत, अमृतत्व मतलब क्या? नो डेथ. ऐसे जगह पे लेके जाना. आप देखेंगे काफी बार गांव में खास करके जब लोग फायर लगाते हैं ना लोग चूल्हे पे, तो पहले छोटा सा लगाते हैं. छोटा सा होता है निखारा म्हणतात त्याला मराठीत, निखारा या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, मुस्ता या फिर गरम गरम कोयला जो होता है लाल लाल होता है, उसमें आग नहीं होता है कुछ. तो फिर लोग क्या कहते हैं उसको? तो ब्लो करते हैं ना. ब्लो करने से क्या होता है? फायर क्रिएट होता है उसमें. करेक्ट. वैसे ही सिमिलरली अगर हम रेगुलरली हमको जो स्पिरिचुअल स्पार्क मिला है हर एक को, उसको रेगुलरली ग्लो करेंगे. किससे? जो मैंने देखा है ABCD क्या है, डिस्कस करेंगे आगे. When you blow your life like that, spiritual life, then one day आपको लगेगा रे प्रभु सर, we can't see that place now. किसने देखा उस जगह? Have someone seen that place? We're talking about spiritual world. Have someone seen that place? Oh, I should go there. ये सब हम आज उसमें today we'll try to discuss these points. This discussion. So I think so. This is all of us were quite clear that this world is a temporary. This world has a nature which is temporary. Correct? सब लोग मानते हैं बात को? कैसे? Any examples? Maybe already good example today. The bodies of beauty kings, who is the rule to make men go crazy? Become dried up in old age like grapes turn into raisins. Raisins पता है ना? मनुका उसके अंदर पूरा सूख जाता है बॉडी. तो इसलिए शास्त्र they talk about सत असत विचार. सत असत मतलब क्या? असत. सत मतलब क्या? व्हाट इज परमानेंट होता है ना. आपने देखा रोड पे कभी देखा? जब समटाइम ट्रैवल द रोड, म्युनिसिपैलिटी पे बैनर लगाते हैं, टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस. देखा कभी लिखा ऐसा बोर्ड लगाते लोग? ठीक है, थोड़ा समय की बात है. टेम्पररी थोड़े समय के लिए क्या है? इनकन्वीनियंस है. पर एक बार रोड अच्छे से बन जाए फिर परमानेंट कन्वीनियंस. तो वैसे ही इन दिस वर्ल्ड वी शुड आल्सो थिंक अबाउट असत मतलब क्या? व्हाट इज टेम्पररी. सत मतलब क्या? व्हाट इज परमानेंट. करेक्ट. तो मेनी टाइम्स इन द लाइफ, हमारे जीवन में समटाइम वी ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू टेम्पररी थिंग्स.
which over a period of time vanishes. For example, if suppose someone is too much absorbed in his beauty, तो क्या वो परमानेंट रहने वाला है आपके साथ? रहेगा तो करना चाहिए। आप कितना भी स्क्रीन क्रीम लगाओ, कितना भी वो फेस लिफ्ट सर्जरी कराओ, कितना भी उसमें ना जो भी करना है कराओ, बाहर से अलग अलग लगाओ चीजें, बट अ टाइम विल कम व्हेन एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट. दैट मींस व्हाट? इट्स टेम्पररी. नाउ इज इट वर्थ टू स्पेंड टाइम विद दैट? सी आई एम नॉट सेइंग हमको कुछ करना नहीं, ठीक है, एकदम ऐसा पूरा गंदे गंदे रहो, कुछ नहाओ नहीं, पूरे काला काला सब बन जाओ, ऐसा नहीं हो रहा. शुड बी क्लीन, क्लीन होना चाहिए. अलॉन्ग विद दैट कितना टाइम देना चाहिए, दैट्स अवर चॉइस. अब देखो, आपको पता है कि भाई मुझे कहीं जाना है, तो व्हाट डू यू डू व्हेन ट्रैवलिंग? पूरा प्लान करेंगे ना कि ठीक है, जर्नी में ये चीज लगता है, आई शुड कैरी इट विद यू. पर सोचो, जो चीज आपको जर्नी में लगने नहीं वाला है, क्या आपको उसके उसके टाइम देना चाहिए? इफ यू आर गोइंग एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी एंड इन द प्रोसेस आपको लगा ठीक है ये चीज कर लेता हूँ, ये चीज कर लेता हूँ, पता नहीं बाद में कभी तो काम आएगा. घर में देखा काफी बार माता लोग क्या करते हैं, घर में प्लास्टिक जो दूध का पिशवी आता है, अलग पाउच आता है, दूध निकाल के तो चिपका के रखती है. अच्छा बात है, इट्स गुड, बट हमको क्या लगता है कभी ना कभी काम आएगा मुझे. अब घर में भी देखो काफी बार वी accumulate so many things with a thought कभी तो काम आएगा मुझे. और काफी बार ये मैंने खुद भी करता हूँ. मैं 6 महीने में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार कम से कम मैं मेरा रूम और सब कुछ स्कैन करता हूँ और देखता नहीं मैंने अगले लास्ट 2 महीने में इसको यूज किया क्या मैंने. तो मैं यूज नहीं किया इसको यार, मतलब आगे यूज करूंगा क्या, मैं इसको नहीं यूज करूंगा, है ना. 2 से 6 महीने इज गुड टाइम टू चेक whether something is useful or not to me. If you are not using it, then you should give it to someone who can use it. काफी बार जैसे ना कभी बैटरी होता है, बैटरी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम बोला कभी तो कभी यूज करूंगा मैं, पर या तो उसका डेट चला जाता है तो डेड हो जाता है, किसी को दे दो यूज करेंगे. वैसे इन दिस वर्ल्ड वी may use apparently we spend time with temporary things thinking that someday it may be useful. कोकोनट सबने देखा है? कोकोनट में क्या होता है? सबसे पहले बाहर से उसका एक फाइबर होता है, फाइबर के अंदर शेल होता है और शेल के अंदर कोकोनट होता है, करेक्ट? तो ऐसा बोलते हैं, आई थिंक यू वुड हैव हर्ड अबाउट ग्रॉस बॉडी, सेटल बॉडी. सुना है आप लोगों ने? क्या होता है ये? हमारा जो पंच धातु से बना हुआ जो बॉडी है, जो उसको हम टच कर रहे हैं अभी, इट्स मेड ऑफ अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, 5 कंपोनेंट्स. दैट इज कॉल्ड अ ग्रॉस बॉडी, जो हम जिसको महसूस कर सकते हैं. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, जिसमें आपका मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, 3 चीजें हैं. एंड देन वी हैव आवर सोल. सोल मतलब वी आर द सोल, हम सोल हैं, करेक्ट? बट वी ना आइडेंटिफाई विद दिस बॉडी. ऐसा हमको लगता है कि मैं ये मेरा बॉडी है, मैं बॉडी हूँ, ऐसा लगता है. सो ये कोकोनट के एग्जांपल में जो बाहर का शेल है उसका कंपैरिजन किया जाता है किसके साथ? शेल मतलब शेल नहीं, फाइबर, जो फाइबर है उसका जिसको हम खींच के निकालते हैं, इट इज कंपेयर्ड टू ग्रॉस बॉडी. इनसाइड जो उसका जो होता है ना, उसका शेल जो होता है अंदर का कड़क वाला, इज कंपेयर्ड टू अवर सटल बॉडी. अंदर का जो कोकोनट है व्हाइट कलर का, दैट इज कंपेयर्ड टू सोल, है ना. तो हालांकि देखेंगे तो पानी कहाँ है? सोल, करेक्ट. तो जो लव फॉर गॉड इज कंपेयर्ड टू दैट वाटर, इट्स देयर विद द सोल. बट अभी क्या आपको, जैसे अभी मैं आपको कोकोनट ला के दिया, कैन यू एक्सेस वाटर? यू कांट एक्सेस वाटर. क्या करना पड़ेगा आपको? छील के निकलना पड़ेगा, शेल को तोड़ना पड़ेगा, देन यू कैन एक्सेस द, इसका जो पल्प है, एंड वाटर बोथ. इसका मतलब क्या है हमारे केस में? आपको पता है कि वो जो खोबरा जो होता है ना, खोबरा जो घर में यूज करते हैं कुकिंग के लिए, तो कैसे बनता है पता है? ड्राई वाला, कि नारियल को, पूरे के पूरे नारियल को
इसमें डालते हैं, इसमें डालते हैं हमने, वेल के अंदर डालते हैं, दे पुट दैट इन वेल, वेल विहीर, उसके अंदर डालते हैं और फिर उसको काफी समय तक रखते हैं। और फिर कुछ समय क्या होता है, उसका जो बाहर का ये होता है ना आपका, जो फाइबर होते हैं वो सूख जाते हैं, उसको निकाल के फेंक देते हैं, अंदर का शेल रहता है, और फिर शेल निकाला और वापस उसको पानी में डालते हैं। तो कुछ समय क्या होता है, वो शेल अंदर का जो होता है वो भी सूख जाता है पूरा, और फिर अंदर का जो कोकोनट है, पल्प, और जो उसका बाहर का शेल है, ये कैसे हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। बचता नहीं, कभी ऐसा बचता है। तो वैसा हम सबका ग्रेजुअली होना चाहिए, होना चाहिए। मतलब जो आपका सोल है, जो हमने कंपेयर किया था पल्प के साथ, उसका किसके साथ कनेक्शन कम हो जाना चाहिए, निकलना चाहिए, शेल और पल्प का कनेक्शन निकल जाना चाहिए, और बाहर को तो निकल ही गया। देन वन कैन एक्सेस द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसका हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो इसीलिए वन हैज टू रिवाइव। रिवाइव का मतलब क्या है, आप बोलते हैं ना कि हमने डिस्कवरी किया, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, तो उससे पहले नहीं था क्या वो, था। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो क्या उससे पहले अमेरिका नहीं था क्या, था ना। तो उसने डिस्कवर किया उसको। सिमिलरली ऑल ऑफ अस वी हैव द स्पिरिचुअल थिंग इनसाइड अस ऑलरेडी, वो क्या करना है, उसको अभी डिस्कवर करना है बस। वही हम लोग ये डिस्कवर योर सेल्फ कोर्स के माध्यम से कर रहे हैं। डिस्कवर योर सेल्फ मतलब क्या, डिस्कवरिंग योर पल्प, दैट इज योर सोल, एंड देन एक्सेसिंग दैट ऑर्डर। ऑर्डर क्या है वो, लव ऑफ गॉड, दैट्स द कोर्स का है, हमारा गोल है। दैट्स व्हाई इन दिस वर्ल्ड हमने देखा कि कैसे चीजें आर टेम्पररी। व्हाई कांट द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड रिमेन परमानेंट। आपको लगता है यार ठीक है ना, अभी परमानेंट रहना चाहिए ना यहाँ पे ब्यूटी, सी ऑल ऑफ अस वी वांट टू रिमेन ऑलवेज यंग। कोई है मैं बोलता मैं बूढ़ा होना है, कोई है, हो ही जाएगा। ऑल ऑफ अस वी वांट टू बी परमानेंटली हैंडसम, ऑल ऑफ अस वी वांट परमानेंटली यूथफुल। वो क्यों चाहते हैं हम लोग, व्हाई डू यू वांट, ये आपको डिजायर कहां से है। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ये डिजायर ओरिजिनल डिजायर है हमारा, बिकॉज सोल ओरिजिनली इज सच्चित आनंद, द सोल इज परमानेंट, इज फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस। ये सोल का नेचर, ये हमारा नेचर है ऐसा। पर अभी हमने ये बॉडी के साथ आइडेंटिफाई कर लिया है, इसलिए क्या हो गया है हमारा हालत, उसी बॉडी तो टेम्पररी है, वास्तवांशी ये जर्नानी यथा विहाय, ये इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम यूथ till old age. It is keep on changing, always every moment body changing, something permanent in a non permanent state कैसे लगेगा, तो हमारा हालत है, that's our position, we are permanent, we have nature desire to be permanent, so that's our natural desire, because soul is permanent, Satchidananda, but we are somehow stuck up in a machine। हमने प्रॉब्लम वो नहीं है मशीन हटके हम लोग, प्रॉब्लम है मशीन के साथ आइडेंटिफाई किया है। क्या समझते हैं आपको, एनी एग्जांपल, that we identify with this machine, with this body a lot, any example, उनके साथ मेरी आइडेंटिटी। ओके गुड। सोचो कि किसी ने, आपने देखा जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, आपको देखा है कोई गैलरी में कोई खड़ा है और आपका फोन नीचे फेंक रहा है, वो क्या होगा हालत। या फिर आपने बुगाटी के, तो व्हीकल होते बुगाटी बुगाटी, मेरे को मेरे एक बार छोटा भाई है, वो अलग अलग गाड़ियों के नाम बोल रहा था, मैं बोला मुझे पता नहीं सर, टॉक अलॉट अबाउट बुगाटी। तो सपोज आपका बुगाटी फेरारी जो भी है, ऑडी, so suppose you have purchased a car and someone comes there and takes an iron rod and hits the car, आप देख रहे हो ऊपर से, क्या लगेगा, इसने आपको मारा है क्या, दुख तो होता है फिर।
But I think it's like a, similarly, I, the soul, I, the body. जब कोई आपको गाली देता है तो गाली किसके लिए होती है? क्या सोल को टच कर सकती है? अरे कृष्ण गीता बोल रहे यार, वो तो पानी से गीला नहीं होता है, आग से जलता नहीं है, सत्य करता नहीं है, ऐसा सोच। तो गाली आपको किससे दे सकती है फिर? बड़ी बोलते हैं, यार मुझे गाली दी, चलो मैं उसको आंसर करूंगा, अभी मारूंगा, जो भी करूंगा। So we are in nature permanent, but stayed in staying in a body because we identified with this body. Yeah. Just soul, love for God is already there within that. क्या example? इसका कोकण का पानी already है वहाँ पे, तो हमको करना है, पानी है उधर, मेरे पास पानी है, नेचुरल नेचर वही है। बल्ब कभी लोग कवर लगा लाइट का, नीला लगा, नीला लगेगा, येलो लगा, येलो। So that is what, वो कलर का अलग अलग स्क्रीन से स्क्रीन निकल जाएगा। सिमिलरली जैसे तो बाहर है, तो तो I want to remain permanent because he is permanent. Important to the shadow. That is the अब स्टोरी सुना पैरेंट इन एज है, पैरेंट हु इज इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे एक मालकिन थी, उसका केस, उसके केस को जगह पॉलिश कर दी थी, केस का विशेष, और वो उसको थी, केज को धो के रखी थी, और पैरेट को खाने कुछ दे दी नहीं थी। तो क्या पैरेट जिएगा? पैरेट मर जाएगा, है ना? वैसे ही काफी बार क्या होता है, हम लोग हमारे केज को एकदम चकाचक पॉलिश करके रखते हैं, पर अंदर जो सोल है, जिसका सच में उसको उसको ज्यादा नीड है खाने का, we don't feed our soul, and that's why because we don't feed our soul, we are starved spiritually. Then we start identifying with this body, with this world, we take this world very seriously. दुनिया का हर एक चीज, हर एक बात, हर एक सिचुएशन को बहुत सीरियस लगता है। That's why we get more and more। देखा कभी कभी जो वो जाला होता है, जाला मकड़ी के जाला होता है, मकड़ी के जाले को बोलो तो क्या जाला है यार, क्या डिजाइन निकला, ये मस्त डिजाइन है एकदम। वो जो कीड़ा देखता है और जाके अटक जाता है उसके अंदर, और अटकने के बाद जितना वो हिलता है, जितना कुछ करने का प्रयास करता है, उतना क्या होता है, ज्यादा करता है। ये है बटल वर्ड। जितना जिसमें उलझोगे, उतना आपका जीवन और अटकेगा। So there is a nice story we should share with you. साउंड है क्या इसमें? साउंड लगाना पड़ेगा इसको। तो दिस स्टोरी ऑफ लिक्विड ब्यूटी, कुछ अलग स्टोरी नहीं है, नया स्टोरी नहीं है, वही हम सबका स्टोरी है। कैसे एक लड़का था आपके एज में, आप लोगों के जैसा हैंडसम, और नेचुरली वो he got attracted to a very beautiful girl. ठीक है, यही चीज समझ में।
So what we're going to discuss in this story is a story of a girl, as I said, and how what attracts us is the living beauty. बराबर ना? सोचो अगर आप रास्ते से आ रहे हैं और अब एक सुंदर लड़की खड़ी है और एक डायरोमा खड़ा है, डॉल खड़ी, अब किसे अट्रैक्ट हो गए? बोलो यार, खुल के बोलो। लड़की से हो गया ना अट्रैक्ट, बिकॉज देयर इज अ लाइफ देयर, देयर इज समथिंग, पता है ना? जो कोई व्यक्ति ऐसा डेड डेड बॉडी के साथ कोई लव नहीं करता है, जिंदा चाहिए ना व्यक्ति सबसे पहले। दैट मींस लव इज वेयर देयर इज लाइफ, लाइफ होना चाहिए उसका सबसे पहले, है ना? एंड उसके बाद में अब देखा अमेरिका में व्हेन समवन डाइज, व्हेन दे टू उसका फाइनल राइट जब चलते हैं ना, उसको दफन करते हैं, तो दे डेकोरेट द बॉडी वेरी नाइसली। उसमें अच्छे से जाएंगे, पूरा अच्छा कोट कोट, पूरा अच्छा सेंटिमेंट बार के सब कुछ करके, ताकि मुझे लगता है कभी अगर मेरा जिंदा हो गया बॉडी तो मुझे वापस से वो सेम फॉर्म में मिल सकता है। दे हैव दैट कंसेप्शन ऑफ। तो बेसिकली डेकोरेशन ऑन अ डेड बॉडी हैज एनी वैल्यू? दैट मींस व्हाट इज अट्रैक्टिव मींस, ये बॉडी तो अट्रैक्टिव नहीं रहा अभी हमारे डिस्कशन के हिसाब से। व्हाट इज अट्रैक्टिव? लाइफ, और वी कैन से इन आवर एज वी आर डिस्कसिंग सोल, सो इज अट्रैक्टिव, राइट? ये स्टोरी जो है इसमें देखेंगे हाउ द स्प्लिटिंग ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड, टू ट्राई टू हियर, आवाज आएगा शायद इसमें। There is a man who got attracted to a beautiful girl. Girl did not agree, as usual. Boy was persisting. Please. ऑडियो ना the boy persisted. So in India, of course, the girls they keep their chastity very strictly. तो भारत में काफी हमारा का कल्चर है, तो लोग अपना चैस्टिटी रखना चाहते हैं। So she लड़के said, ठीक है, मैं एग्री करती हूँ आपके प्रपोजल के साथ। एक वीक का समय दो मुझे, you come. मैं आऊंगी, She appointed. आप एक वीक के बाद आओ। So the boy तो was very लड़का बड़ा खुश हो गया, यार एक वीक The का girl took some purgatory परगेटिव मतलब जिससे डिसेंट from होता the है, 7 days, ऐसा उसने लिया। and she was passing stool वो स्टूल पास कर रही थी, टॉयलेट कर रही थी बार and बार, vomiting, और उल्टी कर रही थी and बार she बार। kept all this तो vomit. उसका उल्टी और उसका सारा विष्ठा एक दो अलग अलग घड़ों में भर के रखा। So when the appointed time जब came, टाइम आया तो the लड़की boy का आने का, came, and the लड़का आ girl गया, was sitting डोर पे on बैठी the थी लड़की door. है, The boy तो लड़की inquired, कहाँ है, वो सुंदर where लड़की is कहाँ that है? girl? She said, I am that girl. बोले मैं वही लड़की हूँ। No, you आप are इतने so बदसूरत ugly. है, आप थोड़ी You are लड़की so हो। beautiful. You are not that girl. आप वो लड़की नहीं हो, No, I am that मैं girl. वही लड़की हूँ, But I am पर now मेरी जो separated सुंदरता है by मैंने खुद से अलग beauty करके रखी है, in a different form. अलग इसमें निकाल के What रखी is सुंदरता है। that? She saw. बोले देखो ये This दो is the पॉट में मेरी beauty. सुंदरता निकाल के रखी है मैंने। And morning. This is the ingredient. Actually, anyone may be very robust or very beautiful. If he passes tour for 3 or 4 times, everything changes. है ना? तो इसमें बेसिकली क्या कहा गया है कि so ब्यूटी बॉडी, फिजिकल बॉडी डजंट हैव एनी ब्यूटी। अगर वी फील अट्रैक्टेड, हम अट्रैक्ट क्यों होते हैं किसी बॉडी के प्रति? जस्ट इमेजिन करो, तो मैं परमानेंट मत करो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि किसी का आप ये स्किन का लेयर निकाल दो उस समय के लिए, कैसे दिखेंगे लोग? अट्रैक्शन कुछ रहेगा? बेसिकली मतलब कि अट्रैक्शन किस में है? पैकेजिंग। आजकल दुनिया में जो इन टुडेज वर्ल्ड वन ऑफ द रोबस्ट इंडस्ट्रीज पैकेजिंग इंडस्ट्री।
अब देखेंगे अच्छे से बाहर से फर्स्ट क्लास कवर लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे लोग लगेंगे यार यार बस अंदर कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर पैकिंग फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो ऐसे दुनिया में होता है, पैकिंग फर्स्ट क्लास रही तो हमको लगता है क्या बस बाकी से हमको वी फील एवरीथिंग एल्स इज ओके, पैकिंग शुड बी फर्स्ट क्लास। दैट्स व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट in this world what attracts people is the packaging only. So what do we learn basically from this story is this, some lessons from that. So fleeting beauty of material body, we saw how she vomited, how she passed stool, and it was not at all attractive for anyone, not for the same person. उसी की बॉडी से निकला है वो स्टूल वाला वोमिट उसी के बॉडी से निकला है, और सेम व्यक्ति से पहले अट्रैक्ट हुआ था, अभी उसको देख के ऐसा कर रहे हैं, है ना। रियल ब्यूटी इज इन स्पिरिचुअल पार्ट, हमने डिस्कस किया। Should not get attracted madly to the temporary beauty and forget the goal of life. That way, people get distracted by this aspect. So, mundane intellectual and aesthetics, however, are deluded by the outward beauty, attraction or relative truth, and are unaware of the spiritual spark, which is both the truth and the beauty at the same time. So, what is real beauty? Real beauty is the spark, our soul. That's the real thing in this world, because it is permanent. Our bodies, now we are young, after some time we become old. Oh, there was one heroine in Western world, in Hollywood. As soon as first उसके चेहरे पे आ गया ना थोड़ा wrinkle आ गया, थोड़ा सा wrinkle आया, उसने suicide कर लिया. Why? Now no one is going to look at me. That was her anxiety. So our material body belongs to the material world. Material body is perishable, full of ignorance and pain producing. Spiritual body is permanent, full of knowledge and bliss producing. And spiritual soul actually belongs to spiritual world. इसलिए why is body, जैसे मैंने कोकोनट का एग्जांपल दिया, as soon as कोकोनट का शेल निकल जाता है, then it is accessible. Similarly, once we come in our original nature, that is a spiritual nature, we can access the spiritual world. So we are like a parrot in a cage. मैंने example दिया parrot and cage का. इससे parrot बाहर आ जाएगा cage के, then no more bound. He is not bound then. He is free. So when you become pure devotees, there is no more birth for that. जैसे ये चार चीज होता है ना, जब birth, death, old age and disease. These four things are common to everyone in this world. And if you want to come out of that, the best thing is go to the spiritual world. Apparently, we see Krishna was born in jail. है ना, बहुत ही जगह कंपैरिजन किया जाता है जेल के साथ. But if Krishna took birth in jail, but his taking birth in jail and our taking birth in this world is not same. Janma karma cha me divyam, Krishna says in the Gita. Krishna's birth, Krishna's activities, they are transcendental. They are special. They are not. They don't follow the same laws what we follow for us. And for us, a man and woman has to come together to produce a child. But in case of Krishna, it was Devaki and Vasudev. First of all, Krishna appeared in the heart of Vasudev. From the heart of Vasudev, he got transferred to the heart of Devaki. In that way, he entered the womb of Dev. ये तो एकदम नॉर्मल वे नहीं है ना बर्थ का. आप में से किसी का बर्थ हुआ है ऐसा? हम में से किसी का नहीं हुआ ऐसा. Only Krishna in that way is transcendental. So Krishna says in Bhagavad Gita this part that urdhvam moolam adhashakam, but it is compared to upside down banyan tree. अब देखिए अगर आप यहाँ पे गए होंगे, कोई रिवर बैंक पे गए होंगे, तो यू सी कोई झाड़ रहता है उसके बैंक पे, तो काफी बार उसका रिफ्लेक्शन उल्टा गिरता है. झाड़ का टॉप मोस्ट पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लोएस्ट पार्ट बन जाता है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर मैं इसको रखूंगा एक रिवर बैंक के ऊपर, ये इसका टॉप मोस्ट पार्ट है, पर रिफ्लेक्शन में क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा, ये सबसे नीचे दिखेगा, है ना. वैसे ही लव ऑफ गॉड इज द टॉप मोस्ट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड. जब ये मटेरियल वर्ल्ड में आता है, जैसे आप देखें बनियन ट्री को उल्टा किया है, तो इसका टॉप मोस्ट पार्ट जो है वो इसका लोएस्ट पार्ट बन गया है ना. तो स्पिरिचुअल का टॉप मोस्ट पार्ट क्या है, लव. तो इट बिकम्स इन मटेरियल वर्ल्ड एज लस्ट, काम.
You heard about lust? काम क्या सुना होगा आपने lust? अभी आप बोलेंगे अरे बाबा ये सब आप जो बोल रहे हैं फैंटेसी अच्छा लग रहा है ये सुनने के लिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन है, बट क्या सच में एग्जिस्ट करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड? डज इट रियली एग्जिस्ट? क्या लगता है? देखिए बच्चे लोग कभी कभी वो गेम खेलते हैं ना, वो व्यापार खेला आप लोगों ने, व्यापार बिजनेस, जो बच्चे लोग कितने सीरियसली खेलते देखा आपने? पैसे के नोट्स होते हैं उनके पास, कॉइन्स होते हैं, उन लोग तो यार बस वो बोले ये तुमको लेना है तुमको इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना गोल्ड को देना पड़ेगा। अब देखो वो जब ये बच्चे लोग जो खेल रहे हैं बिजनेस, और जब ये उनके पेरेंट्स उनको देखते होंगे, पेरेंट्स को क्या लगता है? पेरेंट्स क्या करते हैं देख के? सीरियसली डू दे टेक इट सीरियसली? और वो क्या बिजनेस कर रहा है मेरा बेटा? अरे तो दिस इज चाइल्ड प्ले। मतलब कोई कई जगह कुछ फेक है, मतलब उसका मतलब क्या है? रियल भी है। वो लोग झूठा कहते, जैसे होता है ना कभी बार फेक करेंसी आता है, इसका मतलब क्या है? रियल करेंसी कहीं ना कहीं होगा ना, इसलिए तो फेक आया। अगर रियल होता ही नहीं था तो फेक क्यों आता था? फेक आता ही नहीं था। तो फेक चीज का होना ये इंडिकेट करता है कि रियल चीज भी है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, रियल मार्बल होते हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं, हाँ, उसके साथ फेक मार्बल भी होते हैं, सस्ते वाले चिपकाने वाले। तो फेक मार्बल क्या दिखाता है? रियल मार्बल होता है। मेरा कैपेसिटी नहीं परचेस करने का उसका, बस रियल करेंसी या फेक करेंसी मेरा एग्जांपल दिया ऑलरेडी। रियल मैंगोज एंड फेक मैंगोज। अच्छा रियल मैंगो तो रियल वाला जूस वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, रियल मतलब रियल रियल मैंगोज है ना। एंड रियल ब्यूटी वर्सेस द मटेरियल ब्यूटी। So real beauty never fades away. It always remains permanent. That's why Lord is always beautiful and constantly permanently beautiful. But in our case, our beauty, as we saw in the small clip, it fades away. And because it fades away, we are in the material world, and which is the perverted reflection of the spiritual world. Till now, we saw about material world, which is perverted reflection of the spiritual world. So let us see what is the blissful spiritual world. The second point of this discussion, today's discussion. The soul originally belongs to the spiritual world, where every word is a song, every walk is a dance, water is like a nectar, all living beings are pure, and there is no old age, disease, or death. Halaki in spiritual world, even it is said, even no one is greedy. Can you imagine tiger and deer drinking water together? You can imagine this world. Because जीवो जीवस जीवनम. So as soon as tiger sees the deer, उनको क्या लगता है ये मेरा lunch box है. और जैसे डियर टाइगर को देखो सोचता अरे बाबा भागो अभी. So इसमें क्या होता है कि जैसे आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, क्या होता है? If suppose someone is better than you, then he takes over your place. If someone is having a better business, he takes over the smaller businesses. If someone having a big fish eats the small fish. ये दुनिया का हमारा रीति है. This is the law of this world. But in spiritual world, it doesn't exist like that. Why? Because it is like that. A deer and tiger can dance together, can embrace each other. So like that, this is the spiritual world. And that is our real eternal home, where we get unlimited and unending happiness, which is called as Vaikuntha, or we call it as a goal is back, return back home, back to Godhead. आप लोगों ने सोचा है ऐसा कि दुनिया में अलग अलग तीर्थ स्थान है, होली प्लेस है ना?
वृंदावन है, मथुरा है, और क्या क्या है, अयोध्या है, द्वारका है, जगन्नाथपुरी है, रामेश्वरम है। ये सारे होली प्लेस क्यों होते हैं पता है आपको? और व्हाई डू यू गो फॉर यात्रा? लाइक यू आर सेइंग लाइक वी वेंट फॉर यात्रा रिसेंटली। तो क्या होता है ना, व्हेन यू गो फॉर यात्रा, द पर्पस इज दैट टू आइडेंटिफाई, अच्छा ये आपका स्पिरिचुअल, बिकॉज देयर दिस प्लेस ऑफ कंपेयर्ड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से सारे, है ना। तो हम यात्रा जब जाते हैं, तो जाने के बाद क्या होता है वहां पे, वी गो देयर, जैसे होता है ना, जो कुछ जो पागल खाने में व्यक्ति होते हैं ना, तो ट्रीटमेंट कैसे होता है पता है आपको? दो ट्रीटमेंट होते हैं। वो व्यक्ति को अपने घर पे लेके जाते हैं उसको, उसके घर में, देखो ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा रूम है, पेरेंट्स हैं, भाई है, बहन है ना, ये तुम्हारा गाड़ी है, और फिर भी उसको याद नहीं आया तो झटका मारते हैं उसको, फिर वो झटका दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। वैसे ही हम लोग जब जाते हैं यात्रा धाम में, दिखाता है ये आपका घर है, ये भगवान आपके पेरेंट्स है, हम कहते हैं ये सब है ना, मुझको याद नहीं आ रहा है, तो याद नहीं आ रहा है। तो फिर भगवान क्या कहते हैं, आप बोलते हैं ठीक है भैया आप जाओ, अभी आपको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है, शॉक ट्रीटमेंट का। देन यू आर इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में भी शौक लगते हैं आपको, अलग अलग व्याधि आती है, अलग अलग त्रिविध ताप आते हैं, अभी आपको लगता है यार भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान मुझे आपके साथ वापस आ रहा है, बस हो गया, बस हो गया भगवान। तो पेन से क्या होता है, हम लोग वी स्टार्ट टेकिंग शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। भगवान मजा नहीं ले रहे उसमें, बट कृष्णा वांट्स अस टू वांट अस बैक होम, बैक टू गॉड, दैट इज द गोल ऑफ दैट। तो आप बोलेंगे यार फिर इतना सब अच्छा है वहां पे, एवरी स्टेप पे डांस, इतना नेक्टर पानी है, इतना सुंदर है, तो व्हाई डज द सोल लीव द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड कम टू द मटेरियल वर्ल्ड? तो लगा इतना अच्छे छोड़ के क्यों आए हम लोग यहाँ पे, क्यों आना चाहिए यार, अच्छा उधर ही अच्छे थे ना। यहाँ पे तो प्रिजन है, तो क्यों क्यों व्यक्ति छोड़ के आ सकता है, क्या लगता है आपको? कैन यू गेस व्हाई दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कंपेयर्ड टू द प्रिजन हाउस? ये दुनिया को प्रिजन हाउस क्यों बोला गया है? एग्जाम्पल, जेल कीपर इज कंपेयर्ड टू माया देवी, सैंपल है के लिए एग्जाम्पल। होता है जेल कीपर, होता है एक जेल का मास्टर होता है, वैसे ही माया देवी बैठी है पे त्रिशूल लेके, अटका के रखी दुनिया में। जेल इज कंपेयर्ड टू व्हाट, पढ़ा ना मैं अभी जस्ट, मटेरियल वर्ल्ड। फूड इज grains, fruits, etc. मेडिसिन इज, दुनिया मेडिसिन क्या है? herbs। और फिर ये सब चेक शर्ट इज मटल बॉडी, विप्स इज द lamentation, illusion, hunger and thirst. Going back home, back to spiritual world is the release from the jail. Stay in state, stay in spiritual world. Law of state, laws of God. Prime Minister of the state is the God. Now, still our question remains unsolved. Why does the soul leave the spiritual world and come to the material world? क्यों? Now, ये यहाँ पे मैं आपको एक आगे चल के थोड़ा सा वीडियो भी दिखाऊंगा, बट इन द मीन टाइम एक बच्चा है, अ बॉय मे एडमेंटली वांट अ कार, तो फिर फादर क्या करते हैं, ठीक है बेटा छोटा कार ले ले, खेल चले छोटा कार के साथ, तो क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। Similarly, the soul comes to this material world to try to imitate God for a while till he realizes his position as servant of God. इससे फादर अपने बच्चे को छोटा कार देने से भगवान हमारे लिए एक मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे आके लगे कि यार मैं भी ईश्वर बन सकता हूँ, मैं भी भगवान बन सकता हूँ। भगवान ही भगवान क्यों है, मैं क्यों भगवान नहीं हूँ? इसके लिए भगवान हमारे लिए अरेंजमेंट करते हैं। जैसे कैन अ फिश बी हैप्पी आउट ऑफ वाटर? Similarly, or if you want to give fish everything, give suit, coat, tie, deo, apple, mobile, huh? Not apple eating, cigarette, donut, dollars. Can these comforts make him happy? What is the real happiness? Back to water. Similarly, when we are
in the spiritual world, we can be happy there permanently, and not in the material world with apparently so-called comforts and luxuries of this world. They are not going to make us happy. You may be temporarily little bit happy, but that's not a permanent happiness, as we discussed. We are like a lost son of a billionaire father. भगवान हमारे जो बाप है, करोड़पति है. हम लोग क्या कर रहे हैं दुनिया में, कुछ चीजों के साथ अटके पड़े. So we need to revive that with the father. Here's a nice story. Man had 2 sons. एक पिता थे, उनके 2 बेटे थे. The younger son told his जो छोटा बेटा था, father, I want my share. फादर of the मुझे मेरा estate शेयर दे दो, स्टेट में से मैं जा रहा हूँ. तो पिताजी बोले ठीक है बेटा. So, his father agreed to divide his wealth between डिवाइड कर his दिया. और sons. फिर वो छोटे बेटे ने क्या किया, अपना सारा पैक करके चीजें लेके भाग गया, चल के घर से बाहर. फादर बड़े चिंतित थे. Days later, his younger son packed all his belongings सारा चीज लेके निकल गया बेटे बाहर. and nearly wasted all his money सारा on wild पैसा उसने लूटना चालू कर दिया. उसको निकलना चालू कर दिया. पीता था, सट्टे में हुए, फिर और चीजों में नाच गाने में सब पैसा उड़ा दिया. देखो वही व्यक्ति उसको एनकरेज करे तो उसके बाद क्या होगा. गोल्ड लोन क्या दिया, सारा हार गया. दारू पी के उल्टी करना चालू कर दिया. साथ में 2 पैसे मांगने लगे, बोले कुछ नहीं मेरे पास. सारे उसको दोस्त लोग छोड़ दिए. फेंक दिए बाहर. About the time his money ran out, a great सारा पैसा famine खत्म हो swept गया. over the जब land and बहुत he began बड़ा to starve. टाइम आ गया. Hiring. And the man sent him into his फिर fields लोग to ने feed लोकल the फार्मर pigs. हायर कर लिया जो पिग को देखता था. The young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him. No one gave him anything. कोई कुछ नहीं दे रहा था, पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया था. When he finally came to his senses, he said to himself, at home, even the hired servants have food मेरे घर enough पे to तो मेरे spare. सेवक लोग And भी here अच्छे I मेरे am मजे में थे. dying of hunger. मैं तो उनका हालत मुझसे भी He खराब है. wasted everything his father gave him. मैं सारा वेस्ट कर दिया फादर ने दिया हुआ. While he had the job of feeding the pigs, the young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him. तो वो चीज भी अच्छा लगने लगा जो पिग्स खा रहे थे. Finally, he came to his senses and said, my father's workers have plenty to eat, and here I am starving to death. Go to my father and say to him, Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no वापस longer मैं good पिताजी enough के to साथ be जाऊंगा called your son. और फिर उनको वापस में Treat me like one of your workers. बोले आप मुझे आपके सेवक की तरह किया काम क्यों ना लिया. जैसे पिताजी देखो कह रहे मेरा बेटा वापस आया, छूट गया था. Still a long way off, father saw him and felt sorry for him. पिताजी को बहुत बुरा लगा, मेरे बेटे की हालत हो गई. अब बात करते पिताजी उसके पास वापस चले गए. और उसको वापस से कहते गले से लगा लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया.
hugged and kissed him. Hurry, bring your best clothes and put them on him. घर पे लेके आया है, उसको पूरा अच्छे से नहला धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए. Prince finger and sandals for his feet. Son of mine was dead, but has now come back to life. He was lost. He's now पूरे been गांव में पूरा found. फेस्टिवल हुआ. And they began to हमारा बेटा वापस घर पे आया. We have to remember our interrelationship with our father, because once we are with the father, just like हमें स्टोरी में देखा, जैसे when he is back with his father, he is happy again. He was away from his father, he was not very happy again. He was very miserable. So we need to be back with our father, and then for that we need to nourish the when you have to water the tree, you don't water the leaves of the tree, you don't water the fruits of the tree, you water the root of the tree. Because when you put water the roots of a tree, the entire tree gets nourished. Similarly, when you eat food in your stomach, the entire body is nourished. Similarly, all the souls of the Lord are happy only by serving the Lord. That's what we learn from this. And then we see many great examples of different devotees, like Hanuman specifically, where how the devotees, they are becoming so happy in serving the Lord. We see when Lakshman was hit by the arrow, Hanuman was the one who went and bought that jadi booty for Lakshman. So he did anything and everything required for the service of the world. That means what? The soul is a cooperator, he's not a competitor. As soon as the soul becomes a competitor of the Lord, he becomes independent. When he becomes dependent on the Lord, he becomes surrounded of the Lord, that time he is happy. And that's why soul is happy only in rendering the loving devotional service to the Supreme Lord in the spiritual world, and not in the material world where he chases of the mirage of material pleasure and gets cheated. So we end here. The solution part, I think so next time we will discuss the solution part. I just give a glimpse, so we will not miss it. So the formula, as I said, is ABCDE formula. What is supposed to do? How to align with God and nature. Here is the formula. A stands for association, B stands for books, C for chanting, D for diet, and E for engagement or seva. By doing these 5 things, we can actually revive our original nature and go back to God, go back to our original place. So I have to stop here because we have less time and we're not able to cover up the remaining part of ABCD, everything, each one has a detail. But in summary, I just want to say association means because association creates aspirations. And you know the story of that parrot. 2 parrots were there, the same mother. One parrot was with saintly people, and one parrot was with all rowdy people. Both of their language was completely different. Effect of association. So association creates aspiration. You are an average of 5 people you associate with. That is association. Books is because books, they give us a thought process, they give us a line of thought. So books are very important. They take us to because we associate with the person whose book we read or about whom the book is. Because many times, for example, people may read Wings of Fire, for example. Abdul Kalam may not be available or accessible, but whatever inspiration he has available in that book. That's why books are very important. Similarly, when you read spiritual books like Bhagavad Gita and other books, many different books, these books give us that inspiration, give us the knowledge. Chanting, why do we chant Hare Krishna? I think so last session you were introduced Hare Krishna also. Beads were also given. We are told how chanting is like, it's a cleansing process. It cleans the mirror of our mind, increases our focus, and purifies our heart.
so that we can see the world, see the things as they are. And most important, diet is waiting for you. I don't want to separate you from your diet. Yep, sir. So diet is not only the diet what we eat, but diet what we see, what we hear. इसका भी डाइट होता है, क्या सुन रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं. It impacts your consciousness, है ना. जैसे होता है ना, कोई स्टेडियम है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड का टीम है, एंड द टेररिस्ट इज एंटरिंग द स्टेडियम. कैसे एंटर किया टेररिस्ट ने? बिकॉज सिक्योरिटी जो इंचार्ज था उसका टेररिस्ट का हाथ मिलाई हुआ था. तो टेररिस्ट हो गया अंदर, तो फिर क्या हो गया? अंदर जाने से क्या होगा? टेररिस्ट जाने से क्रिएट अ हैवॉक. Similarly, a terrorist-like thought when it enters your mind. Mind में एंट्री कैसे होता है कोई भी चीज का? Either through eyes, either through ears, or through mouth. इसलिए तीनों चीज को गार्ड करना चाहिए. इसलिए what we are hearing is very important. किससे सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, very important. What we are seeing, what we are talking, what we are eating, ये सब बहुत important होता है. सारा ये दुनिया का these are called knowledge acquiring senses. What are the things of this world are there? The internal system to that. We have to be very careful with that. And along with that is the engagement of any seva. जैसे आप लोग यहाँ पे आते हैं, you see many other devotees who are staying there. They do so many different small sevas. कोई clean करेगा, कोई इसको serving करेगा, कोई इसको है ना, कोई cooking करेगा. So by engaging in some small sevas, it's like the process of all these things together impacts our consciousness basically. It makes us ready for what we're discussing today. So today we discuss about three things: material world, which is miserable; spiritual world, which is ecstatic or happy; and we also have the formula to reach there by ABCD: association, books, chanting, diet, and engagement or seva. Thank you. Hare Krishna. Any questions? अच्छा नंबर. अच्छा Left. Shantanu. Shantanu or Vivich? Any questions? Hello. Okay, thank you. Anyone else here? Okay, so we end here. Thank you, Hare Krishna.